फिर से क्वेश्चन लिखो, हाउ टू फाइंड component of a vector. How to find component of a vector. How to find component of a vector. ये एक वेक्टर है A, ड्रॉ करो, एंड कुछ और इंफॉर्मेशन अब गिवन है, एंड दैट इज दिस एंगल इज थीटा. एक एंगल भी इन्वॉल्व कर लो, थीटा. तो थीटा is angle between x axis and vector A, isn't it? We have to find x and y component of vector. So we'll start with that geometrical construction thing. You know that कि वो क्या करना होता. अब तो किसी को confusion नहीं ना है इसमें, तो ऐसा कर दो. This is your x component and this one is y component. एक और चीज देखो, ये जो शेप दिख रहा है ये एक रेक्टेंगल है या नहीं? सो इफ दिस एंड दिस साइड विल बी डिफरेंट और सेम, दिस आल्सो इज ए वाई, वैसा मार्क कर दूं. और एक ट्रायंगल शेड कर दे रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है. इस राइट एंगल ट्रायंगल में बताओ, हाइपोटेन्यूज इज योर वेक्टर और नॉट, एंड एडजेसेंट साइड कौन सा कंपोनेंट है? x कंपोनेंट. एंड ऑपोजिट साइड कौन सा कंपोनेंट है? y कंपोनेंट. एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज किस फंक्शन से रिलेटेड होता है? एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेन्यूज. लास्ट क्लास cos थीटा इज हाउ मच? एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज. और साइन कितना होता है? ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज. सो इन दिस डायग्राम, पहले यहाँ एक बार लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, इतनी बार यूज करोगे कि अपने आप को याद हो जाएगा. cos थीटा लिखो पहले. Instead of saying cos theta is base by hypotenuse, what we'll say? Adjacent side by, so first write adjacent side by hypotenuse. Adjacent side by hypotenuse. Adjacent to what? Angle. So adjacent side क्या है? AX. और hypotenuse क्या है? Vector A और its magnitude. A with arrow or without arrow? Without arrow, जो कि side है ना. So you get AX or not? क्या वैल्यू आ गया? AX is A cos theta. AX is A cos theta. तो अब तक तुम क्या कर रहे थे? अभी शीट में तुम क्या किए थे? परपेंडिकुलर केवल ड्रॉप करके छोड़ दिए थे और लेवल किए थे. अब एक स्टेप आगे बढ़ गए ना, अब वैल्यू आ गया, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए होगा? एंगल. वेक्टर का मैग्नीट्यूड एज वेल एज angle. Angle means direction of that vector. Similarly, how you will find AY? कौन सा function use करोगे बताओ? Sin theta. So right, sin theta equal to opposite side by hypotenuse. एक बार फिर से लिख लो, opposite side by hypotenuse. So sin theta, opposite side is AY by A. How much is AY equal to? A sin theta. But my point is, do we need to do this and then write AX equal to this much? And this is what we are interested in. Now to get to this, is it necessary that first we write cos theta and sin theta, then we write this? Or by just looking at diagram, you can straight away write? Just looking at diagram, you can straight away write or not? On what basis? X component is what side? Adjacent side. And Y component is what side? और एक और चीज चेक करो, तुम जितना भी डायग्राम ड्रॉ किए हो, लेबल किए हो, उसमें केवल एक चीज देख लो. Whenever you will find component of a vector, you shall be dealing with right angle triangle or not. Finding component of a vector means what type of triangle? In every right angle triangle, given vector will be base, perpendicular or hypotenuse? Hypotenuse. Why? Because you are dropping perpendicular from that head or not. So in every case, your vector will be what? Hypotenuse. And component will be what? Adjacent side and opposite side. So
in what term you are going to get component always? Cos function and sine function. For which component you will get cos? X or adjacent? Adjacent. And for opposite side what you will get? Y. जैसे let us further इसको verify करते हैं. दूसरा diagram. Because finding component of a vector is first step of problem solving in physics. जब आगे तुम वेक्टर पढ़ना है, वेक्टर को यूज करना शुरू करोगे फिजिक्स में, what you will find that each and every case, each and every problem, you are supposed to find component of that vector, है ना? तो component of vector में इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं होगा कि perpendicular ड्रॉप करोगे और फिर cos sin लिखोगे and then you will come to this much is x component and this is y component. उनको देखते ही समझ में आना चाहिए कि अच्छा this is x component and this one is y component. This is what we want. Suppose this is your vector b. ड्रॉ करो. ये एंगल सपोज फाई है. Now without dropping any perpendicular, now mentally you can easily visualize. ये दिख रहा है ना? ये बताओ x component तुम क्या expect करते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव. और y component पॉजिटिव. कहीं कोई इशू नहीं है. Now ये बताओ b का x component if I ask you, what will you say? ये phi है and ये कौन सा साइड है? Adjacent side. And that will be which component? X component. तो adjacent side से क्यों ना हम लोग शिफ्ट हो जाए adjacent axis? Adjacent side की बजाय हम लोग और वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? So for this angle, which one is adjacent axis? X axis. So X component will be sine or cos. And what about Y component? B sine phi, right there. यही आएगा ना? बट एक इशू है और बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या इशू है? अब चेक करते हैं कुछ. व्हाट इज दिस बी हियर? वेक्टर और इट्स मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड और वेक्टर में भी नेगेटिव और ऑलवेज पॉजिटिव. सो दिस इज पॉजिटिव. ऐसा ऊपर लेवल कर दो. इट इज पॉजिटिव. क्यों पॉजिटिव है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. मैथ कॉस फाई और कॉस थीटा ऐसा है कि हमेशा पॉजिटिव होता है. कॉस क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो. पता है ना? कॉस नेगेटिव किसी को पता है कब होता है? फ्रॉम 0 to 90 डिग्री फॉर थीटा बिटवीन 0 to 90 कॉस इज नेगेटिव और कॉस इज पॉजिटिव. पॉजिटिव. ये बताओ ये फाई ग्रेटर देन 90 है या लेस देन 90? तो ये कॉस फाई का भी साइन क्या होगा? पॉजिटिव. क्यों पॉजिटिव हुआ बताओ? दिख रहा है ना? लेस देन 90. मेंशन कर दो बिकॉज फाई इज लेस देन 90. फ्रॉम डायग्राम फाई इज लेस देन 90. डन. You are multiplying two positive number, so what sign you will get? Positive. But this x component of b is measured along positive x-axis or negative x-axis. So what should be sign of this? Negative. But यहाँ sign क्या आ रहा है? तो ये एक mistake हो रहा है. It's a mistake or not? तो mark cross करो उसको. समझ गए? क्योंकि तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कंपोनेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. फर्स्ट फिगर में कोई इशू नहीं है. क्यों नहीं है? एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों क्या है? पॉजिटिव. इस केस में लेकिन क्या है? व्हाट यू एक्सपेक्ट? एक्स कंपोनेंट क्या आना चाहिए? नेगेटिव. वाई क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. बट जब हम ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं एडजेसेंट एक्सिस एंड ऑपोजिट एक्सिस, व्हाट साइन आई एम गेटिंग? पॉजिटिव. सो वी आर सपोज्ड टू टेक दिस एंगल. तुम दूसरे डायग्राम में शो करो. ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा. ड्रॉ दिस डायग्राम. क्रॉस करने के बाद फिर से ये डायग्राम एक बार ड्रॉ कर लो.
and I'm writing something here. देखो ये ठीक सही है. क्या एंगल है ये? एंगल बिटवीन व्हाट? एक्स एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड वेक्टर इन व्हाट डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. राइट दैट. सो मैथमेटिक्स क्या कहता है? हाउ यू आर सपोज टू मेजर एंगल. एंगल किसी भी एक्सिस से मेजर कर सकते हैं या इट शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस? एनी एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस. पॉजिटिव एक्स एक्सिस और किस सेंस में? एंटी क्लॉकवाइज, है ना. दिस इज द रूल. एंगल शुड बी बिटवीन व्हाट एंड व्हाट? पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड वेक्टर इन एंटी क्लॉकवाइज. ये एंगल क्या था बताओ जरा. ये तुम कहाँ से मेजर कर रहे हो? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से या नेगेटिव एक्स एक्सिस? तो वो अपने आप गलत हो गया. तो सही क्या होना चाहिए था? हाउ मच इज दिस एंगल? फाई और 180 माइनस फाई. यहाँ लिख दो पाई माइनस फाई. पाई माइनस फाई. तो हम लोगों को एक्स कॉम्पोनेंट क्या लिखना चाहिए? बी एक्स इक्वल टू बी कॉस पाई माइनस फाई. ये सही होता. और कॉस पाई माइनस फाई इज इक्वल टू हाउ मच? माइनस कॉस फाई. सो व्हाट साइन यू गेट? और जहां तक इस टर्म का सवाल है, ये टर्म क्या है? पॉजिटिव. तो व्हाट इज एक्स कॉम्पोनेंट? नेगेटिव. सो यू गेट करेक्ट वैल्यू और नॉट? यू गेट करेक्ट साइन और नॉट? लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? एंगल कैसे मेजर करना होगा? कहां से? पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड वेक्टर इन. नाउ दिस creates a huge challenge for you because तुम जितना ट्रिग्नोमेट्री जानते हो, कॉस हो या साइन फंक्शन हो, कौन सा वैल्यू में तुम कंफर्टेबल फील करोगे आर्गुमेंट ऑफ कॉस एंड साइन में व्हेन इट एक्सीड्स 90 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री? बिटवीन 0 एंड 90 यू आर वेरी कंफर्टेबल और नॉट? प्रॉब्लम कब शुरू होता है? जैसे इफ आई आस्क यू cos 30, कोई इशू नहीं है, यू फील वेरी कंफर्टेबल. बट इफ आई आस्क यू cos 120, तो एक टेंशन होता है ना. cos 135, cos 180. तो हमेशा कौन सा एंगल तुम्हारे लिए कन्वीनियंट है बिटवीन व्हाट एंड व्हाट? 0 एंड 90. बट अगर हम ऐसा मेजर करना शुरू करें तो एंगल क्या हो जाएगा? मतलब इफ वेक्टर इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंगल कहां से कहां वैरी करेगा? 0 to 90. इसमें 90 to 180. यहाँ 180 to 270 ना. और इसमें 270 to 360. तो केवल तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कंफर्टेबल होगे, बाकी सब में एंगल लेस देन 90 है और ग्रेटर देन 90. ग्रेटर देन 90. लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज क्या हो रहा है, हम लोग इसको नहीं फॉलो करेंगे, सो डोंट वरी. इंटरेस्टिंग ये हो रहा है, लुक एट दिस. ये तो तुम देखते ही बता दिए थे ना किस लॉजिक से? एडजेसेंट साइड एंड ऑपोजिट साइड. और उसमें हम लोग सोचे ही नहीं कि एंगल क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है या कहां से हमको कोई भी एंगल चाहिए, और ये एंगल ग्रेटर देन 90 था या लेस देन 90. इस आंसर में और इसमें किस चीज का डिफरेंस आ रहा है? ठीक से बताओ. वैल्यू का या साइन का? केवल साइन का. केवल साइन करना है. तो क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा मेथड डेवलप कर लें. अब ये डायग्राम ड्रॉ करो. फाइनली ड्रॉ दिस. दिस इज फाई. रिगरस मेथड जानना जरूर चाहिए, बट वो हमेशा यूज करें. इट इज नॉट नेसेसरी. Whenever we find component, तो what I will say is कि दो इशू है. एक cos फंक्शन इन्वॉल्व है या साइन फंक्शन, और दूसरा प्लस है या माइनस. ये दो इशू समझ में आ गया क्या? कंपोनेंट विल बी इन टर्म्स ऑफ cos फंक्शन और साइन, और दूसरा प्लस साइन और
ये बताओ which axis is adjacent axis? x. So ये cos phi होना चाहिए x component और y component क्या होना चाहिए b sin phi. ये चीज तो इशू, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं. अब क्या बचता है, प्लस और माइनस. क्या दिख रहा है, किस एक्सिस के लॉन्ग मेजर कर रहे हो, तो ये क्या होगा, दैट्स इट, यू गेट टू करेक्ट वैल्यू. नो नीड टू इन्वॉल्व विच एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये ज़्यादा कंफर्टेबल. तो क्या नहीं मिस होना चाहिए, कंपोनेंट में भी नेगेटिव ऑल्सो. समझ गया ना. अब देखो हम लोग कितनी तेजी से सारा कुछ कंप्लीट कर सकते हैं. फिर से बताओ क्या क्या इशू हुआ. इफ यू वांट टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, एक इशू क्या है, यू विल यूज कॉस फंक्शन और साइन फंक्शन. ये कैसे सेटल होगा, एडजेसेंट एक्सिस एंड ऑपोजिट एक्सिस. तो एक एक्सिस एडजेसेंट होगा या नहीं, तो ऑब्वियसली दूसरा एक्सिस क्या हो जाएगा, ऑपोजिट. जो एडजेसेंट है उसके अलाउंग क्या आ जाएगा, कॉस. सो ऐसा लिख लो, कॉस विल बी फॉर व्हाट, एडजेसेंट एक्सिस. कॉस फंक्शन विल बी फॉर एडजेसेंट एक्सिस. And second point, positive or negative sign. ठीक है. पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड करोगे, ऐसा लिख लो पहले, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रॉम क्वाड्रेंट ऑफ वेक्टर. क्वाड्रेंट ऑफ वेक्टर, क्वाड्रेंट ऑफ वेक्टर. अब एक क्वेश्चन लिखो, हाउ वी फाइंड क्वाड्रेंट ऑफ अ वेक्टर. हाउ वी फाइंड क्वाड्रेंट ऑफ अ वेक्टर. How we find quadrant of a vector. एक डायग्राम ड्रॉ कर लो, x एक्सिस y एक्सिस. और पेज उलट के देखो, कहीं तुम ABCD 4 वेक्टर शो किए थे ना, गो बैक देयर. ABCD 4 वेक्टर था. हर एक वेक्टर को देखो तो कहां से रीड्रॉ किया हुआ था, ओरिजिन. Now, can you say vector A was, or vector A is in first quadrant? What about vector B? Second. Vector C, vector D, fourth, है ना. तो अब इस क्वेश्चन का आंसर खोजते हैं. मान लो ऐसा ड्रॉ करो, ये वेक्टर E है, यहीं पे इस क्वेश्चन के बाद जो डायग्राम है उसमें ऐसा एक वेक्टर शो कर दो E. What is quadrant of this vector E? First, sure. दिख क्या रहा है, ये कहाँ पे है, फर्स्ट में दिख रहा है ना. लेकिन दो वेक्टर इक्वल कब होता है, दो वेक्टर इक्वल कब होता है, सेम डायरेक्शन एंड व्हाट लेंथ, सेम लेंथ. अ वेक्टर कैन बी रीड्रॉन और नॉट. तो ऐसा डायग्राम में लिख दो पहले, गिवन गिवन लिख दो उसी डायग्राम में. ये तीनों रीड्रॉन है, रीड्रॉन लिख देते हैं. किस क्वाड्रेंट में है ये तीन, सबसे पहले ये तीनों वेक्टर ई है ना, ई ई एंड ई. कौन कौन सा क्वाड्रेंट है इसका, यू विल से तो ये सारे क्वाड्रेंट में. प्रॉब्लम समझ में आया. इफ यू से दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, व्हाट विल यू से, व्हाट अबाउट दिस वन, सेकंड, व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस. बट वो जो ABCD तुम डायग्राम ड्रॉ किए थे, देखो तो वेक्टर का टेल कहाँ पे था. The moment you redraw this vector from origin, what will happen? Any quadrant or second quadrant? So, how you decide about quadrant of vector? Redraw vector from where? Origin. So, write that. To find quadrant of vector, ऐसा लिख दो. To find quadrant of vector, redraw vector from origin. To find
quadrant of vector, redraw vector from origin. Done? So अब ये बताओ, what is quadrant of this vector? Second, है ना? So let us come back to our question. फिर से this is vector A, तुरंत सब कुछ होगा. ये एंगल है θ1, ऐसा ड्रॉ करो. और तुम डायरेक्टली आंसर आई होप लिख सकते हो, देख लो, बिना कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हुए कर सकते हो या नहीं. क्या लिखोगे? कौन सा एक्सिस एडजेसेंट एक्सिस है? एक्स एक्सिस. तो वो कंपोनेंट क्या आएगा? cos θ1. और दूसरा sin θ1. व्हाट अबाउट प्लस माइनस साइन? व्हाट इज क्वाड्रेंट ऑफ योर वेक्टर? बोथ पॉजिटिव. डन. वेक्टर B, दिस एंगल इज θ2. केयरफुल रहना थोड़ा. देखो क्या आंसर लिखोगे. कौन सा एक्सिस एडजेसेंट एक्सिस है गिवन एंगल के लिए? Which axis is adjacent axis? Y axis. So how much will be y component? Right there. खुद लिख लो. Y will be in terms of cos θ2 or not? And x? तो ऐसा है कि x component ही cos आएगा. x component is cos होगा या adjacent component cos होगा? Adjacent will be cos. So do we need to drop any perpendicular? No, but just looking at diagram you can conclude that or not. What about sine? What is quadrant of vector B? What is quadrant? Second. So x will be, y will be positive. So we will not worry about, we will not get into nitty gritty of mathematics कि एंगल कहाँ से मेजर करना है. पॉजिटिव एक्स एक्सिस और किस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसमें अननेसेसरी तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और एंगल का वैल्यू भी नहीं पता होगा कॉस और साइन का. तो बेटर क्या है, कैसे एंगल से डील करना, ग्रेटर देन 90 या लेस देन 90. थर्ड, वेक्टर C, दिस एंगल इज अल्फा. खुद लिख लो. CX एंड CY, क्या क्या आंसर होगा बताओ. CY is C cos थीटा और अल्फा. अल्फा y cos एडजेसेंट एंगल के एडजेसेंट कौन सा एक्सिस है? y एक्सिस है ना. और x क्या हो जाएगा? व्हाट अबाउट साइन? बोथ नेगेटिव, क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड. बोथ नेगेटिव. दिस एंगल इज बीटा. खुद लिखो आंसर, क्या लिखोगे? क्या आएगा? Which one is cos? X component. So D cos beta, another one, and then sine. This will be minus. Oh, sorry. It should be very correct. Alpha or beta? Beta. Angle is beta. Very correct. Done. तो पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे? देखो, पहले तुम क्या करते थे कंपोनेंट निकालने में? ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, रीड्रॉ वेक्टर फ्रॉम वेयर? ओरिजिन, देन ड्रॉप परपेंडिकुलर, फिर लेवल कर रहे थे. अब क्या हो रहा है? डायरेक्टली आ रहा है ना. फिर फिजिक्स में कैसा सिचुएशन होगा वो तुम अपने आप आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट डायग्राम. दिस इज वेक्टर E.
क्या हो जाएगा वेक्टर ई में? वेक्टर ई, व्हाट इज क्वाड्रेंट ऑफ वेक्टर ई? यहां से स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज क्वाड्रेंट ऑफ वेक्टर ई? Vector E. Vector E is in any quadrant or along x-axis. So it is not in any quadrant. It is along, to be more precise, x-axis or positive x-axis. है ना? So ऐसा लिख दो. Vector E is along positive x-axis. So which component will be 0? And x will be length of vector, है ना? So component of vector may be equal to its length or not? कब? When vector is along axis. When vector is along axis. अगला डायग्राम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो. दिस इज वेक्टर f, fx, fy. हाउ मच इज fx? fy, f minus f or plus f? Plus f. Vector h, क्या आएगा? hy is 0, hx minus h. Vector g, gx, gy. Gx is gy minus g. सबसे आसान किस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है? It is vector is in any quadrant or along axis. When vector is along axis, when vector is along axis, one can very easily write how much is its component. और तुम जो डायग्राम लेबल कर रहे थे उसमें तुम कौन कौन सा लेबल नहीं कर पाए थे? अब देखो तो जरा सोच कर, कौन कौन सा केस लेबल नहीं कर पाए थे? चेक करो. जो तुम कुछ पूछ रहे थे ना, 5, 6, 7, ये सब 5, 6, 7 एंड 15, यही था ना? 5, 6, 7 एंड वो सारा देखो तो क्या केस था. तो वो सबसे डिफिकल्ट केस था या सबसे आसान केस था? सबसे आसान केस था ना. तो क्या है मोरल ऑफ स्टोरी? क्या हुआ? मोरल ऑफ स्टोरी क्या है कि जो तुमको अभी सबसे डिफिकल्ट लग रहा है वो बेसिकली क्या हो सकता है? सबसे आसान हो सकता है. केवल उस चीज़ को सीखना है. तो इसलिए हमेशा ये चीज़ ध्यान रखो, क्योंकि जब तुम फिजिक्स सीखना शुरू करोगे ऐसा हो बहुत सारा चैलेंज आएगा. कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है या बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो क्या होना चाहिए? दुखी होना चाहिए या खुश हो जाना चाहिए? खुश होना चाहिए. क्यों? क्योंकि आगे कुछ सीखेंगे तो सबसे आसान होगा या नहीं? तुम उल्टा सोचते हो. क्या सोचते हो बताओ? कि तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है. कि कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है ना, ऐसा फीलिंग आता है कि नहीं? कि कहाँ फंस गए, क्या क्या कर रहे हैं. तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को इनकरेज करते रहना, अदरवाइज बहुत दिक्कत होती है. सो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, 0 हो सकता है. अब इस केस में अगर तुम मैथमेटिकल बेसिस चाहते हो, कोई एक डायग्राम, वापस आओ ई वाले पे, इस डायग्राम पे वापस आओ. मैथमेटिकली चेक करते हैं कि हो क्या रहा है. एक चीज बताओ, इफ आई आस्क यू कि एक्स एक्सिस और वेक्टर ई के बीच का एंगल कितना है, यू विल से 0 डिग्री और नॉट. तो अगर हम यहाँ एंगल जस्ट फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस इसको स्लाइटली ऊपर शो कर देते हैं, तो ये एंगल कितना दिखने लगा? 0 डिग्री. तो एडजेसेंट एक्सिस कौन है? एक्स एक्सिस. तो तुम ई एक्स क्या लिखोगे बताओ? ई साइन या कॉस? कॉस 0. और ई वाई क्या लिखोगे? कॉस 0 कितना होता है? 1. साइन 0 कितना होता है? वही आंसर है. इट अमाउंट्स टू सेम थिंग. ऐसा लिख दो. मैथमेटिकल प्रूफ तुम्हारे सामने. बट अननेसेसरी क्यों ऐसा करेंगे? वो तो ऐसे ही दिख रहा है. राइट दैट. 0 एंगल है ना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो हाउ मच इज दैट एंगल? 0 डिग्री.
cos 0 is 1. Now write another question. इतना कुछ डिस्कस करने के बाद component of vector is vector or scalar. Component of vector is vector or scalar. क्या आंसर लगता है? और इफ यू विश तुम नीचे ऐसा एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो. ड्रॉ करो ऐसा. कोई वेक्टर है A. इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए एक तुम्हारे सामने एक दूसरे क्वेश्चन से इसको डिस्कस कर लेते हैं. यू हैव वेक्टर A. कितने एंगल पे? एंड व्हाट इज दिस 2? मैग्नीट्यूड. इफ आई आस्क यू हाउ मच इज x कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, व्हाट विल यू राइट? 2 into साइन या cos 30? cos 30 कितना होता है? √3/2 ना. 2 will cancel out. What you get? √3. And how much will be y component? sin 30. sin 30 कितना होता है? हाफ. तो क्या आ गया? 1. क्वेश्चन क्या है? ये कंपोनेंट जो है क्या है? एक नंबर है √3 और ये भी क्या है? एक नंबर है. तो क्या आंसर हुआ? स्केलर. कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज स्केलर. बट ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इशू है. आई एम कमिंग टू दैट. कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इशू है. इन सम बुक यू विल फाइंड कि लिखा होगा इट इज अ वेक्टर, है ना. सो वन नीड टू बी वेरी केयरफुल. हम जो तरीका बता रहे हैं उससे तो बहुत क्लियर है. तुम खुद आंसर तक पहुंच गए. क्या होना चाहिए? कंपोनेंट इज अ स्केलर. बट आगे लिख दो. इट मे बी vector also. It may be vector also. So it is better to use terms like scalar component and vector component. उस controversy से बचना चाहते हो तो क्या word use करेंगे? Scalar component and, because in some question हम ही लोग discuss करेंगे क्लास में, जहाँ पे तुम देखोगे word लिखा हुआ है find vector component. इसका मतलब क्या है? क्या ट्रीट करना है तुमको? वेक्टर. बट बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी मेंशन नहीं है ना, बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट मींस व्हाट? वो भी लिख दो. बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट मींस स्केलर कंपोनेंट. बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट मींस स्केलर कंपोनेंट. देन by default component is scalar component.